अच्छा जी। So guys, can you hear me? Yes, Bhaiya, we can hear you. Okay, Yes, so how Bhaiya. far has been your experience in teaching? It's been good. And have you learned something good? Yes. Okay, very nice. And we'll be starting now. Okay, I'm just starting the recording right now. Okay, the recordings are already started. Okay, guys. सो ओके तो ये जो है हमारा वेबटी का फर्स्ट सेशन है टीजी में एंड मैं यहाँ पे कुछ रूल्स क्लियर करना चाहूंगा पहले तो एक सेकंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन ओके सो या कैन यू ऑल सी माय स्क्रीन Yes, Bhaiya, we can see your screen. नाइस ओके सो वेब डेवलपमेंट का पहला सेशन टीजी में आई वेलकम यू ऑल अ वेरी हैप्पी गुड आफ्टरनून सो फर्स्ट ऑफ ऑल I would like you to introduce to our website, techsyndicate.us. Okay, so this website has been built by us and ये website जो है इसके अंदर आप लोग काफी कुछ resources find कर सकते हो जो हम लोगों ने बना रखे हैं. So for example, whenever you go to this site, there is a link over here called Learn. As soon as you click on this link, you'll be able to see all of our resources that we have mentioned here. Okay, so here's app development, website development, 2D design, and like जिस जिस चीजों की हमने class रखी है, you can find all of them over here. And okay, so make sure to use the web development skills because इसके अंदर there are really good uh, there is a really good documentation on how to get started in web development. So okay, and to be frank मैं आपको बताऊंगा तो इस सेशन में WebD is a Bhaiya, really is that made by AI? no, it is made by us and it's quite old to be made by AI. So let me share you something. WebD is a really vast field, बहुत बड़ा field है. It has a lot of components, lot of languages, and इतना सब कुछ है learn करने के लिए कि we can't teach all of that in one session. Definitely one or two sessions. तो we guys suggest कि after this session or during the session, please clarify your doubts. We'll be more than happy to help you guys and guide you in learning WebD because WebD is one of the most important fields in TS and इसके अंदर फिर वही है इतना सब कुछ लर्न करने को we cannot teach all of that in one session. If you guys contact us personally, we'll be more than happy to help you and make you learn WebD. Okay, so right now I'll be starting with the main session. So where's the PPT? Yeah, okay. So welcome to Training Grounds first session. So right now I'll be clarifying the rules of attending a web development session. First of all, silence is not allowed here. In my session, you guys will be discussing with each other. You guys will be speaking out. You need to. It doesn't matter if you're wrong or if you're right. Definitely, mistakes are all. You guys will make mistakes, but these are all okay. Speak as much as you can. Be interactive, and this is not like your regular school classes. You guys do not have to attend any exams or something. This is just to foster your skills and make them better. ठीक है तो यहाँ पे आप दोनों लैंग्वेजेस हिंदी इंग्लिश कुछ भी यूज कर सकते हो I just want you guys to be interactive and understand WebD as good as I can make you understand. Okay. So, by the way, I'm Bhavit Grover and I'm the Joint Secretary of Tech Syndicate. And along with me, Shamak Seth is hosting this session and he's also the Joint Secretary. So, after this session, you guys can just contact us both on Discord or WhatsApp. Okay. So, I have a question. What do you think WebD actually भैया is? आपका डिस्कॉर्ड कौन सा है? डिस्कॉर्ड कौन सा मतलब अच्छा आई विल बी सेंडिंग मतलब मैं आपको अनाउंसमेंट पे दे दूंगा मैं जो मैसेज कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा ठीक है आई थिंक यू गाइस डू नॉट हैव द एक्सेस टू द चैट राइट नाउ आई विल बी सेंडिंग इट लेटर ऑन ओके तो गाइस आई हैव अ क्वेश्चन व्हाट डू यू थिंक इज वेब डी एक्चुअली हम करते क्या है वेब डेवलपमेंट
Bhaiya, You web can, Bhaiya, yeah, web okay. development is like developing websites. Like you can develop different websites and like Yeah, that's completely true. And Abhigyan, do you have something to say? In web development, we develop websites which can help us to build pages and landing pages for our future projects. Nice, really nice. It Okay, makes an impression of our project and it is very useful for getting qualified in competitions, etc. crazy, nice. So does have anyone have anything else to say? By the way, I would suggest turning on your camera so no one is judging you here. Uh, okay, so that's good. You guys have some knowledge about web development. As the name speaks, web development is basically creating websites. You're coding and creating websites. So, but the main question here is, what is the purpose of a website? वेबसाइट का पर्पस क्या है? हम क्यों बना रहे हैं वेबसाइट? Does anyone know? और किसी को कुछ बोलना है? या अभी क्या? It is used to create landing pages and basic pages that नहीं 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 give an एक सेकंड. impression of a project. ये ठीक है. This is what WebD is. But why do we create websites? Websites का concept introduce किया हुआ World Wide Web में. We create websites like if we want to show our product digitally, we want to sell any product, Yeah, or true. we want to show or represent an idea digitally. Correct. Absolutely correct. Does anyone else want to add something? To connect with people online. Yes. Crazy. Nice. And anyone else? To create platforms that allow people to socialize and communicate together. Yeah, yeah, absolutely. So you guys have laid on all the points that I could gather. This is completely correct. We create websites because apps हम बनाते हैं फोन पे. Apps भी same similarity उनकी sorry उनका जो वो है function बिल्कुल similar है websites से. But websites are much more accessible because the World Wide Web can work on any device जिस पे भी internet है. And apps के लिए you guys have to there are basically native to devices. Web development is completely worldwide. कोई भी website आप access कर सकते हो and you guys have unlimited ability to do anything with a website. Okay, so इसलिए web development is very important and web development से ही हम लोग app development पे आए हैं. ठीक है, तो अब there are two terms in the field of web development: web design and web development. Can anyone tell me the difference between these two terminologies? Yeah, begin. Web design is where we design websites, while web development is where we bring those designs to life. Okay, okay. I think And that web development is when we code the web, and web design is the way we like put it. I've seen a few templates, yeah, like how you basically put the text and the pictures. yes, absolutely right. Okay, so this is the main difference between web design and web development. During web design, you guys would also have learned this in 2D designing and 3D designing. हम लोग जो है 2D 3D में अपना वेबसाइट का जो पेज है वो दिखाते, हम लोग डिजाइन करते हैं कि वो कैसा दिखेगा. फॉर एग्जांपल कोई बटन या फिर कोई टेक्स्ट की क्या प्लेसमेंट होगी. बट इन वेब डेवलपमेंट वी ब्रिंग दैट टू एक्चुअल लाइफ. वी कोड इट, वी राइट द कोड ऑन अपने कोड एडिटर्स जो कि हम अभी डाउनलोड भी करेंगे इस सेशन में. एंड हम लोग दिखाते हैं कि कैसे ये वेब डेवलपमेंट जो है सॉरी हम लोग ये कोड करते हैं एंड उससे जो वेब डिजाइन बनाया हम उसको एक्चुअली में वर्ल्ड वाइड वेब में डिप्लॉय कर सकते हैं. ठीक है, सो ओके, अब द क्वेश्चन इज, डू यू गाइस नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप लर्न करोगे सेशन में? इसका आंसर मैं ही दूंगा. And the answer is no. You guys do not need to learn each and everything. Everything is available on the net right now. ये Sorry? बाबू 12th क्लास के बच्चे भी. Path, can you please mute? Yeah, okay. So you guys do not need to remember each and everything that I will tell you in this session, or you will learn in FD in your entire journey. Okay, so everything is now available on Google. You can मतलब कुछ भी आप गूगल करो आपको सब मिल जाएगा. तो फॉर एग्जांपल अगर कुछ डाउट है, मेरे को कोई एरर आ रहा है,
You guys can access. You guys have access to AI. You guys have access. जब मैंने वेब सीखी थी, there was no AI. To be frank, हम लोग पूरे टाइम गूगल पे एरर सर्च करते रहते थे. हम लोगों को कभी कभी आवर्स लगते थे ये सब सॉल्व करने में. बट नाउ AI has made our lives a lot easier. ठीक है. तो do not use AI to create ideas. Use AI to solve problems that you are facing. You make your work easier. Do not using AI, but do not make AI do your work. ठीक है. That is what I would like to say जब मैं AI को रेफर करूंगा WebD में, because I do not promote AI पूरा आपका प्रोजेक्ट बनाए. ठीक है. तो the answer is कि definitely आपको सब याद नहीं करना, but you need to remember the fundamentals of each and everything. फंडामेंटल्स अगर आप कर पा रहे हो रिमेंबर, दैट इज एक्चुअली इजी. फंडामेंटल्स करना रिमेंबर. बाद में यू कैन जस्ट गूगल समथिंग एंड कोई टेस्ट थोड़ी है आपका ये, आप इसको आराम से अपनी वेबसाइट बना सकते हो. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट. ठीक है, इस पे हम लोग अभी बाद में भी आएंगे, बट कैन एनीवन जस्ट गिव मी अ जिस्ट कि क्या क्या हो सकता है वेबसाइट का स्ट्रक्चर. या विकी. A website can include a home page and other pages that are related to the content. For example, if we are building an online shop, we can have a home page, a shopping page, a cart page, and a user profile page. Yes, exactly. And does anyone have anything to add? There can be a page explaining that what exactly those people do. Okay, yeah, there can be a team page definitely, and documentation as well. Yeah, does anyone have any chance to say? There can be a Okay. page on how to continue further. Yeah, definitely there can be. So we'll be talking about this in the next slide as well. But a website has two major parts. The first one is front end, the other one is back end. अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू मेंशन अनदर पॉइंट, दैट इज द सैड रियलिटी ऑफ लर्निंग वेब डेवलपमेंट, जो मैंने आपको अभी बताई भी थी. दिस इज नॉट एक्चुअली सैड, बट आप जो भी लर्न करते हो, जैसे कि मैंने अपना 4-5 years पहले कुछ सीखा, अभी के टाइम पे वो चीज ऑलमोस्ट उसका यूज खत्म हो रहा है, बिकॉज there is so much incoming in WebD, there is so much to learn in WebD. आप सब कुछ याद नहीं रख सकते, and because और चीजें बनती भी जा रही है, there is impossible मतलब it is impossible to learn everything in WebD. You can't just say कि I know WebD. We all are learning here. हम लोग जो भी यहाँ पे करेंगे, हम लोग डिस्कशंस करेंगे, मेक श्योर कि आप कुछ भी आपको दिमाग में आ रहा है, जस्ट स्पीक इट आउट लाउड. वी ऑल विल लर्न समथिंग. ठीक है, मैं भी कुछ लर्न करने के लिए आया हूँ यहाँ पे. तो दिस इज एक्चुअली रियली नॉट रियली सैड, बट आपको लगेगा कि थोड़ी बहुत मेहनत आपकी वेस्ट हो रही है, बट डू नॉट बी disheartened. So this is the structure of a website. There are two parts, as I have spoken before, front end and back end. Now, based on these points, can anyone tell me what actually front end and back end is? But your front end is like what the user sees, Yeah, like what happens on the user's side, and the back end is what happens on the server side, like what, like the JavaScript, like what yeah, is the what yes, is the program to be run code. or what is to be done. yes, exactly. And Toshika? Um, Basically, just like how a live theater works, the front is what the user sees, like all the decorations, the buttons, and in the back end, there is all the coding. Yes, yes, a really good example. Thank you. And Abhigyan, do you have something else to say? I was just saying the same thing, the description. Okay, nice. And Vivan? Yeah, so basically front end is like the user is interacting with something like visible to the user. Everything you can Yes, see, click, and experience like design layouts and information data.
while backend is on the server side where you where the coding is done. It's like hidden under the hood as a phrase Yes. terms. Yes. Okay, Abhigyan, do you have something else to say? An example is like the Teams app itself. The front end is what we are able to see the gallery, the people, etc., and the options we are receiving, while the back end is all the code and the communication between servers that is allowing this. Yes, crazy example. Nice. Okay, so you guys have already told what front end and back end actually is, and I'll be just explaining it a bit more in detail. So front end is basically what you actually see on a web page. For example, in this session, we will be building this web page. Here you can see a text box. It is a very simple page. Here you can see a text and also a button that makes this transition and looks cool, I guess. So uh, it okay, so front end includes all the visual elements that you can see in a page. For example, as Abhigyan told us, all these buttons, chat, people raise, etc. So these are all the buttons that you can see on your side, what you can actually see with your eyes. But what if I click this raise hand button? It raises my hand, and you all can see it, right? This is not just happening to me, this is happening to all of you guys. So this is what actually happens in backend. We do not get to actually see what is happening. Someone is unmuted. Parth, can you please mute? Yeah, okay. So yeah, where was I? Yeah, okay. So backend is not what you can actually see. It happens behind the scenes, but it is a really crucial part of web development. Without backend, no website is useful. There is no functionality in a website. Okay, so front end will include all your visual elements like buttons, images, text, and these are all HTML. HTML is like the building blocks of a page. For example, हम लोग घर भी बनवाते हैं देखते हैं, it is built using bricks. ब्रिक्स में सीमेंट डलता है एंड ऑल्सो फिर उसके बाद हम लोग जब सीमेंट डालते हैं उस पर पेंट हो जाता है ना? तो पेंट हो जाता है तो वो हम लोग मतलब कि स्टाइल करते हैं उसे, घर को हम लोग पेंट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम घर को स्टाइल कर रहे हैं। एंड वेबसाइट को भी जब हम स्टाइल करते हैं, हम लोग उसे एक टूल यूज करते हैं उसे स्टाइल करने के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड CSS. So CSS stands for Cascading Style Sheets. Cascading Style Sheets. I will write it down in the chat. CSS, Cascading Style Sheets. And HTML is Hypertext Markup Language. Bhaiya, we Okay. cannot use the chat. Oh, you guys cannot use the chat. So I'll be posting this in the, I guess, web development channel. Okay, so yeah, I will post it later on. I'll just be creating all the notes over here, and then I'll be posting it in the web development channel. No problem. Okay, so HTML, you guys should remember this. HTML stands for Hypertext Markup Language, and CSS stands for Cascading Style Sheets. Yeah, Vivan. Here you have written that front end is basically just what we see and which is HTML. But like when we click on a button, some actions are already integrated in the code, like in the HTML code. So would that be front end or back end? Actually, now you're talking about another concept, that is the client side and the server side. I'll get to that a bit later. Backend में आपको मैं बताऊंगा कि क्या होता है वो, and that is actually a really good doubt. And yeah, so Is client side and server side both in front end or both of types of back end? actually ये मैं कहूँगा ये जो टाइप है फ्रंट एंड एंड बैक एंड एंड अपना क्लाइंट एंड सर्वर, these are two different things, मतलब different कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं दोनों। अगर हम देखें Oh, फ्रंट okay. एंड एंड बैक एंड, it is a structure of a website, but when you look talk about the functionality of a website, then you get towards client side and server side. I'll be talking about that later on. अभी थोड़ा सा स्लो करते हैं, बाद में progressively we will be faster. ठीक है? तो backend में, as others have also pointed out, and I have also Bhaiya. told you, yeah, Bhaiya, what is CRUD? CRUD. I'll be explaining it just a second. So backend में I've explained what actually happens when you click a button, and it is all the work that is done behind the scenes. Okay, so backend में
आपके पास आता है databases, you guys have APIs, you guys have CRUD. So what is actually CRUD? CRUD stands for create, read, and then it is wait a second, create, read, and then it is update. Yeah, thank you, I just forgot it. And delete. Okay, so this is CRUD. Actually there are CRUD operations. So CRUD operations में क्या होता है basically, when we use a database, when we use a server, हम लोग पहले तो ऐसे करते हैं, ये एक ऑपरेशन तब फॉलो होता है जब हम एक बटन को क्लिक करते हैं। जैसे मैंने रेज हैंड का बटन क्लिक किया, क्या हुआ सबसे पहले, द बटन क्रिएटेड रिक्वेस्ट टू द सर्वर। उसने बोला सर्वर को कि भाई अब मैं क्लाइंट हूँ। कौन था वो जिसने मेरे से बोला, विवान। हाँ विवान, आपने पूछा था मेरे से कि व्हाट हैपेंस जब हम बटन को क्लिक करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, आई एम अ क्लाइंट, आई कैन सी माई वेब पेज, एंड वेब पेज में भी क्या हो रहा है, क्लाइंट asks the server for something. So as I'm clicking this button, I am asking the server कि मैंने बेसिकली सर्वर को एक रिक्वेस्ट क्रिएट की एंड सर्वर के पास गई, और फिर उसके बाद सर्वर ने मेरे रिक्वेस्ट के हिसाब से देखा कि मेरा नाम जैसे भवित है, उसने देखा मेरा नाम भवित है, भवित ने रेज हैंड वाला बटन दबाया, तो फिर उसने ये इंफॉर्मेशन गैदर किया। इसको हम सोर्ट ऑफ रीड बोल सकते हैं, रीड इज मे बी समथिंग एल्स, बट इसके अंदर हम लोग ये एग्जांपल यूज कर सकते हैं। क्लाइंट ने यूज किया कि बेसिकली यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट भेजा है तो मेरे नाम को ही अपडेट करना है, फिर इसने अपडेट किया, यहाँ पे मेरा हैंड रेस का वो आ गया, क्या बोलते हैं इसे, एक इमोजी आ गया। एंड उसके बाद अब मैंने सपोज करो यही सेम वापस की, वापस ऑपरेशंस रन होंगे, बट इस बार इंस्टेड ऑफ अपडेट उसने डिलीट कर दिया ये। These are all the operations which happen behind the scenes using a database. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं CRUD operations. Is that clear? Yes. Nice. Okay, so I'll now be moving further. So basically client में ये है, client will ask the server for something and the server will respond with all the data that it has stored, या फिर जो भी उसको हम लोगों ने जिस तरह से प्रोग्राम किया है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं the tools that we'll be using during this session, during these sessions. So that the tools are JavaScript, HTML, Node.js, CSS, and VS Code. All of these four, JavaScript, HTML, Node.js, and CSS, these are all basically languages. Okay, yeah, Tushar, do you have any doubt? यस, आप कह रहे थे आप कह रहे थे कि ये जो CRUD ऑपरेशंस होते हैं, तो ये क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, सो जैसे मीटिंग में वो कभी कभी शेयर का बटन आता है, तो वेबसाइट उसे ब्लॉक कैसे कर देती है? लाइक अगर मैं इधर शेयर पे क्लिक करने की कोशिश करूँ, ये मेरे को बोलता है ओनली मीटिंग ऑर्गेनाइजर्स एंड प्रेजेंटर्स कैन शेयर। सो कुछ चीजें मेरे लिए ब्लॉक्ड होती है, सो वेबसाइट कैसे करती है कि कुछ लोगों को देना और कुछ लोगों को नहीं देना? Okay, great doubt. Just a second, अबे क्या? Okay, नहीं actually तुम बोलो पहले, फिर मैं देखता हूँ। These operations can occur by like blocking it in the database code so that the user is not allowed to. And when you press the button, it will automatically, when it reads the database, it will see that you are not allowed to. It will automatically end the operation. without Yes, executing it. exactly. Yes, exactly. So यही बोला अभिज्ञान ने, एकदम सही बोला। इसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत ऐड करना चाहूंगा। तो बेसिकली जब मैं डेटाबेस को रिक्वेस्ट भेजना चाहूंगा कि मेरे को शेयर करना है स्क्रीन, बट अब क्या है ना, यूजर के अंदर इसने स्टोर कर रखा है, जैसे कि हम लोगों ने टीम्स पे सब पे रजिस्टर कर रखा है, बट एंड हम लोगों के यहाँ पे मीटिंग में मैंने डिफाइन कर रखा है कि मैं प्रेजेंटर हूँ, मेरे पास ये प्रेजेंटर का रोल है, एंड ये आपके पास अटेंडी का रोल है ना। तो अटेंडी के रोल में टीम्स ने पहले से ही ये अपने सर्वर साइड पे डिफाइन कर रखा है कि किसी के पास अगर अटेंडी का रोल है एंड इफ दे ट्राई टू शेयर देयर स्क्रीन, जस्ट ब्लॉक इट आउट इमीडिएटली, बिकॉज दे डू नॉट वांट कि अटेंडीज जो है अपनी स्क्रीन शेयर करें। दैट्स व्हाई यू आर रिसीविंग अ मैसेज कि ओनली प्रेजेंटर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स कैन शेयर देयर स्क्रीन। ठीक है, क्लियर? यस भैया। ओके, नाइस। तो वही है। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, can somebody tell me the difference between JavaScript and Node.js?
JavaScript is like it's like embedded kind of. Okay, okay. I understand your point. Somebody else? Do not fear in trying. अगर गलत भी होगा तो यहाँ पे कौन सा आपको कोई पनिश करेगा? आप एक बार ट्राई तो करो। या विज्ञान? Is it like JavaScript is separate while Node.js is for the nodes and operations available in the Python or HTML and CSS scripts? You are partially correct. Yeah, you are partially correct. And somebody else? JavaScript is type of a front-end language and Node.js is a type of back-end language. True, true. Okay. You guys are reaching there almost. Somebody else? Okay. Yeah, it's So like yeah. it's like JavaScript is for like browsers, and like it's for like Windows stuff like .exe and stuff. No, 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 no. Web But I development thought में that JavaScript was also used to make many games. या यू कैन मेक एक्चुअली जावास्क्रिप्ट इतनी वास्ट लैंग्वेज है, आप उससे डेस्कटॉप एप्स बना सकते हो, आप उससे मोबाइल एप्स बना सकते हो, आप उससे गेम्स बना सकते हो, आप उससे वेबसाइट्स बना सकते हो। बहुत वास्ट लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, बहुत ज्यादा वास्ट। वन ऑफ द, मैं बोलूंगा, लोग कहते हैं कि सी प्लस प्लस एंड लैंग्वेजेस लाइक असेंबली आर वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट लैंग्वेजेस टू लर्न। आई वुड से कि जावास्क्रिप्ट इज नॉट हार्डर, बट इतनी वर्सेटाइल लैंग्वेज है ये, आप लिटरली इससे कुछ भी कर सकते हो आज की डेट में, कुछ भी। तो इट इज बेस्ट टू लर्न जावास्क्रिप्ट। अगर ये बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज भी है काफी। तो इस सेशन में वैसे वी विल नॉट बी टचिंग अपॉन जावास्क्रिप्ट, वी विल ओनली बी लर्निंग एचटीएमएल एंड सीएसएस। बट ये भी सही है, जावास्क्रिप्ट बहुत वर्सेटाइल है। बट नाउ टू बैक टू द पॉइंट, what is the difference between Node.js and JavaScript? Okay, so अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जावास्क्रिप्ट, जैसे मैंने कहा, इज अ रियली वर्सटाइल लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट से आप बहुत चीजें बना सकते हो, दैट इज वेब क्लाइंट, अपना ये एप्स बना सकते हो, वेब अपनी डेस्कटॉप एप्स बना सकते हो, गेम्स बना सकते हो एंड सो ऑन। तो जावास्क्रिप्ट एक बहुत बड़ी वाइड वो है, क्या बोलते हैं उसे, ट्री है। एंड ट्री के ऊपर जैसे ब्रांचेस होती है, one of the branch is Node.js. Node.js is something that we call a framework. फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। दैट इज कि हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट को उठाया, हम लोगों ने उसे कुछ ऐसे मॉडिफाई कर दिया कि हम लोग इसे अब जो हमने मॉडिफाई किया ये कोड, हम इसे सिर्फ एक ही फंक्शनैलिटी के लिए यूज करेंगे। एंड दैट इज व्हाट अ फ्रेमवर्क इज। हम लोग एग्जिस्टिंग एक लैंग्वेज लेते हैं एंड उसको ऐसे मॉडिफाई कर देते हैं कि अब इसका हम लोगों ने पर्पस डिफाइन कर दिया है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट इतना वर्सटाइल है, वी नीड समथिंग थोड़ा स्पेसिफिक। एंड नोड.जेएस ने यही किया है। नोड.जेएस में बेसिकली ये होता है कि जावास्क्रिप्ट पे हम लोग जो वनीला जावास्क्रिप्ट होती है, वनीला मतलब हम लोग जो index.js फाइल लिखते हैं, यहाँ पे अपने एडिटर पे लिखेंगे, इट इज बेसिकली क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड में क्या है, तो यूजर कैन सी जो भी आप कर रहे हो, मतलब अगर मैं बटन दबा रहा हूँ। Yeah, your voice is echoing. Somebody is unmuted, I guess. Mehit, you are unmuted. Can you please mute yourself? Yeah, nice. Okay, so let me pull out a pen and I will show you. Just a second. Yeah, I found it. Just a second, I will switch off my camera first. Yeah, I'm back. Okay, so I'll be drawing something and I'll be showing you. एक second, ये क्या हो? कैमरा मेरा दिखा है आपको? या ओके, Yes. नाइस। तो मैं आपको एक बार एक स्कैलड्रॉ पे बना के दिखा लेता हूँ। कंफर्म। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक क्लाइंट होता है। तो ये सपोज करो मेरा वेब पेज है। वेब पेज पे मेरे पास एक डायलॉग है, डायलॉग मतलब टेक्स्ट फील्ड है,
एंड यहाँ पे एक बटन है, सर्च वाला आइकन बना है इस पे, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऐसे मैंने अगर क्लिक किया इस पे, तो एक चीज तो मेरे को दिखा रहा है यहाँ पे कि बेसिकली यहाँ पे लेट्स से कि क्लिक करने पे, जैसे मैंने यहाँ पे बटन बनाया है, यहाँ पे बटन दबाने पे अगर मैं क्लिक करूँ ना अपने डेस्कटॉप पे, तो ये दब रहा है। दिस इज पार्शियली जावास्क्रिप्ट, हम कह सकते हैं कि ये जो है बटन पे क्लिक होने पे क्या होगा, वो इनिशिएट जावास्क्रिप्ट करेगा। बट देन जब मैंने सर्च पे दबाया, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा जैसे ABC लिखा, मैंने सर्च पे दबाया, सर्वर मेरे पास होंगे, सर्वर पे यहाँ पे डेटा स्टोर होगा। सर्वर में सर्च वो देखेगा कि अच्छा इस यूजर ने मेरे को ये सर्च करने को बोला है, ठीक है, चलो मैं सर्च करता हूँ। यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे ABC नाम की एक एंट्री है जिसके अंदर मेरे को डेटा लिखा है DEF, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यूजर को वापस ये आउटपुट दे दूंगा, ठीक है, मैं ये भेजूंगा यूजर को। अब जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट मेरा क्लाइंट साइड पे है एंड नोड.js मेरा सर्वर साइड पे है। नोड.js इधर है, नोड.js जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, वो सबसे पहले देखेगा कि यूजर ने बटन क्लिक किया, चलो ठीक है क्लिक कर दिया। मैं अब अपना काम मेरा यही है कि बताना कि यूजर ने बटन क्लिक किया है, एंड अब बाकी काम जो है मैं सर्वर को दे देता हूँ, ठीक है। तो उसने सर्वर को भेज दिया। अब सर्वर पे भैया हमारा नोड.js बैठा हुआ है, वो बोल रहा है कि यहाँ पे मेरे को किसी ने तो कुछ भेजा है, बोल रहा है कि मेरे को ABC चाहिए, ठीक है, चलो ABC मैंने ढूंढना शुरू किया, ABC मेरे को मिल गया, DEF है, बहुत बढ़िया, मेरे को मिल गया। अब मैं यही सब चीज जहां से मेरे को, जिसने मेरे को बोला था ये सर्च करने को, मैं उसको वापस दे दूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे JS ने बोला था कि मेरे को ये चीज दो, नोड.js क्या करेगा, वापस ये चीज JS को भेजेगा, एंड JS क्या करेगा, यहाँ पे डिस्प्ले कर दे, ठीक है। अब जो डिस्प्ले हो रहा है वो तो HTML CSS है, बट वो क्या डिस्प्ले करना है, जो सर्वर से कंटेंट आ रहा है वो यहाँ पे लाना, वो JS करता है। Did you guys understand? Yeah, Begyan. So, for example, if we use a small example database server like a JSON file, basically the node.js is the thing that is basically searching and utilizing the data file, while the JavaScript is basically the app that is sending the instructions. Actually हम ये कह नहीं सकते कि Node.js जो है डेटाबेस है। Node.js is not the database. Node.js No, the एक JSON intermediate. file we have is a database. Yeah, JSON फाइल तो डेटाबेस है। Okay, I understood your point. You are correct. डेटाबेस हमारे पास बहुत टाइप्स के होते हैं, तो एक तो हमारे पास JSON फाइल हो सकता है, वो तो काफी ज्यादा वैसा डेटाबेस है, मैं क्या बोलूंगा, थोड़ा प्राइमरी डेटाबेस है ये। बट जैसे अगर आप अपना प्रोजेक्ट एक्सपैंड करते हो, यू लुक फॉर डेटाबेसेस जो कि थोड़े से ज्यादा आपको फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि TS में भी जनरली यूज अ डेटाबेस कॉल्ड MongoDB। तो MongoDB पे क्या करते हैं, Node.js एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट। तो जैसे ही किसी ने बटन पे क्लिक किया, JS क्या बोलेगा, भाई मेरे को बटन पे क्लिक एक इन्फर हुआ है, मेरे को एक क्लिक रिसीव हुआ है। अब इसके साथ मैं क्या करूं, मैं चलो भाई Node.js को ये दे देता हूँ। Node.js को उसने डेटा दिया और क्लिक दिया, बोला कि क्लिक हुआ है यहाँ पे। अब Node.js क्या करेगा, वो देखेगा कि अब मेरे को डेटाबेस में यहाँ पे ये वाली एंट्री है मेरे पास। सपोज करो एक क्लास में स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पास सब्जेक्ट होता है, मैथ होता है, साइंस होता है, SST होता है, इंग्लिश होता है ना। अब Node.js का देखेगा कि ये जो एंट्री आई है मेरे को अब ये किस में फॉरवर्ड करना है, मैथ में करना है, साइंस में करना है, SST में करना है, इंग्लिश में करना है, ये Node.js देखेगा, ये Node.js का काम है। जैसे सपोज करो Node.js ने बोला कि ये तो उसने बोला साइंस का कुछ रिलेटेड है, तो मैं साइंस में भेजूंगा, डेटाबेस से साइंस का डेटा लाऊंगा, मैं इसके अंदर देखूंगा कि साइंस में क्या रेलिवेंट है मेरे लिए कुछ, और उसको रेलिवेंट मिला वो ये यूजर को वापस भेज देगा, JS को वापस भेजेगा। JS will take the JS जो है HTML and CSS का हेल्प लेगा and display it to me. That is how CRUD operations work. Do you guys understand? अगर हल्का सा भी डाउट है तो लेट मी नो। ओके, नाइस। तो आई थिंक अभी हम लोग फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। एंड ओके चलो, दीज आर द टूल्स एंड नाउ अब हम लोग कुछ एक्चुअली में करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक कोड एडिटर चाहिए होगा वेब डेवलपर। ओके ओके, नाइस।
तो कोड एडिटर अब हम लोग जो यूज करते हैं दैट इज VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। सो यहाँ पे जो लिंक है code.visualstudio.com/download, इस पे चल जाओ। इस पे वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली विजुअल स्टूडियो कोड जो है यहाँ पे एंटर कर सकते हो एंड डाउनलोड पे क्लिक कर दो। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड द फाइल। यहाँ पे मेरे डाउनलोड्स में अभी डाउनलोडेड है, एक सेकेंड। हाँ, ये आपको डाउनलोड कर देना है। ठीक है, एक बार डाउनलोड कर दो एंड जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी जस्ट लेट मी नो। ठीक है, या अभी क्या We can also just directly download it from the Microsoft Store, I think. Yeah, I think you can do that as well, but it is better generally to download it from the website because Microsoft Store can sometimes corrupt the files. ठीक है, तो just download it। तब तक मैं थोड़ा सा explain करता हूँ कि What should we do? Like Sorry? if it's pre-installed, what should we do? ठीक है, अगर प्री इंस्टॉल्ड है तो फिर इट इज परफेक्ट। आप बस अभी वेट करो, लेट एवरीवन इंस्टॉल इट। आई वांट कि सब के सब आज एक कोड लिखे एंड एक खुद का पर्सनल कुछ बनाए। ओके, तो आर यू गाइस डाउनलोडिंग? कुछ हेल्प चाहिए तो बताओ मेरे को। कहाँ गया वो, ये रहा। तो यहाँ पे अच्छा, जब आप ये गाइस पेज खोलोगे ना तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन होंगे डेफिनेटली। अगर आपके पास मैक है तो अपना मैक पे देख लेना, अगर आपके पास M1 M2 या कुछ ऐसी चिप है तो डाउनलोड एप्पल सिलिकॉन। अगर आपके पास इंटेल चिप है डाउनलोड, यहाँ पे इंटेल चिप लिखा हुआ है। ठीक है, एंड विंडोज 11 में सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आराम से आपका एक EXE फाइल डाउनलोड हो जाएगी। EXE फाइल से मैं आपको बता दूंगा। एंड मेरे को लग नहीं रहा वैसे यहाँ पे कोई है क्या लिनक्स पे। चलो ठीक है, लिनक्स पे यहाँ पे कोई नहीं है तो इसके अंदर फिर हम लोग लिनक्स का मैं दिखा नहीं रहा। विंडोज पे जस्ट डाउनलोड द EXE एज सून एज इट डाउनलोड्स, मेरे को बस बता देना। एंड ठीक है, रेज योर हैंड्स। ठीक है, जैसे ये हो जाए डाउनलोड। भैया एक बार आप लिंक दिखा सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, ये लो लिंक कहाँ गया, ये रहा। ओह नेवर माइंड, ये रहा। Which type Thank of you. file are you going to use? हम लोग बेसिकली HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। इस सेशन में नहीं यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट, बट इस सेशन में हम लोग बेसिकली HTML और CSS यूज करेंगे। तो HTML और CSS आपको कोई डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। लेटर ऑन वी विल बी डाउनलोडिंग Node.js क्योंकि हम लोगों को वो यूज करना पड़ेगा शायद। ठीक है, तो जब तक Should I make two separate files or one? index.html एंड CSS की जो फाइल होगी वो 2 सेपरेट फाइल्स होगी। सो आई से कि मेरे को फोल्डर जहाँ पे आप जो है अपना क्या बोलते हैं उसे, दोनों फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं एंड थोड़ा ऑर्गेनाइज भी रहता है फोल्डर से। ओके, तो तब तक मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आप उसको डाउनलोड पे रख दो। until then I'll be showing you ki what we'll be creating today. Okay, so this is the page that we'll be creating today. There's a small text field over here and there's a button that has a transition. So we'll be creating this transition and this text. It is quite basic. अगली क्लास से हम लोग जो है थोड़ा और कॉम्प्लेक्स जाएंगे एंड ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, इजीली बन सकता है सबसे। ओके, तो डाउनलोडेड। तब तक आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन डिटेल व्हाट इज एक्चुअली HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट इज। ओके, सो HTML में वी गाइस, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, HTML इज बेसिकली लाइक द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ हाउस या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वेबसाइट। तो हाउस में हम क्या करते हैं, जैसे हाउस को अगर हम बिल्ड करने हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक्स लाते हैं। ब्रिक्स से हम लोग ब्रिक बैक ब्रिक पहले रखते हैं सारी ब्रिक्स को, उसको सीमेंट से लेयर करते हैं, है ना। एंड समटाइम्स हमारे पास घर में क्या बोलते हैं हम लोग को, डेफिनेटली हमारे पास वो भी होता है, फर्नीचर भी होता है, जैसे कबर्ड्स होती है, बेड होता है, अपने पास सोफा होता है, फैंस होता है, इन सब होता है। ये भी हम लोग HTML में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक फिजिकल चीज जो आपको दिख रही है वेबसाइट पे, इट इज क्रिएटेड यूजिंग HTML। इन दिस केस जो हम लोग एक वेबसाइट बनेंगे, we'll be using a paragraph tag। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा HTML में basically we have tags. I will be telling you what tags actually are. So this is a text, we create that, we'll be creating that using HTML. Here's a button and we'll be creating that using HTML.
ओके, सो मैं एक और बार रिपीट करूंगा, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एंड अभी जो हम लोग के पास HTML का वर्जन है अपने पास अवेलेबल है, दैट इज HTML5। ठीक है, तो HTML5 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML दैट वी कैन यूज टुडे। एंड उसके बाद हमारे पास CSS आता है। HTML अंडरस्टैंड करना इज प्रीटी इजी। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि HTML का कोड एक्चुअली में दिखता कैसे। ओके, सो आई हैव अनदर editor, I suppose anti-gravity. Yeah, okay. I'll be opening this once. Yeah, it is AI based. So I just tried it out once and I forgot to delete it. Okay, so uh, just a second. I'll be opening my project and training rounds. Oh, my bad. Training rounds. Yeah, okay. So oh, yeah, okay. Select folder. Done. So मैं ये पैनल बंद कर देता हूँ। कर सकते हैं बंद? कर सकते हैं, ठीक है। भैया So I'll be स्टार्टिंग से बता दो। अभी आप ये जो अपना मैंने आपको कहा है ना VS कोड आप डाउनलोड पे लगा दो, फिर आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप हाउ टू डाउनलोड VS कोड एक्चुअली ऑन योर कंप्यूटर। तब तक आई विल जस्ट बी शोइंग यू बेसिक सिंटैक्स ऑफ HTML कि HTML काम कैसे करता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा। HTML की जो भी फाइल होती है इट ऑलवेज एंड्स विद .html या फिर एक और होता है .htm। सेम होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट हम लोग जनरली HTML यूज करते हैं। तो HTML में जब आप नाम देते हो फाइल्स का, सो हमारे पास जो नाम होते हैं वो थोड़े प्री डिफाइंड होते हैं। जैसे कि हम लोग जो है कोई ऐसे कंपल्शन नहीं है, आई कुड हैव नेम्ड दिस एनीथिंग, लिटरली मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता था नाम एंड इट वुड वर्क परफेक्टली फाइन। बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं, जनरली नाम जो होते हैं फाइल्स के थोड़ा सा अच्छा लगता है, जैसे कि उनको समझ में आ जाए कि एक्चुअली में है क्या। सपोज करो मेरे को अपना वेबसाइट का मेन पेज बनाना है, एक्चुअली तो होम पेज, कि जब यूजर मेरी वेबसाइट पे आएगा उसे कौन सा पेज दिखना चाहिए, वो होगा हमारा index.html। ये हम जो है अपने सारे डेवलपर की कम्युनिटी एग्री करती है इस पे कि index.html इज द बेसिक पेज जो कि हम लोग सारे के सारे यूज करेंगे फॉर अ होम पेजेस। ठीक है, इट इज जस्ट अ नेम, नेम आप कुछ भी रख सकते हो, बट आपके पास ये जनरली रहता है कि अच्छा रहता है। बिकॉज जब आप कोड एक्सपैंड करते हो, जब आप बहुत लोगों के साथ काम करते हो, जैसे अगर आप अपना फर्म्स में काम कर रहे हो, कंपनीज में काम कर रहे हो, यू गाइस विल हैव टू राइट कोड दैट इज अंडरस्टैंडेबल। आपका आप ऐसा कोड नहीं लिख सकते जो कि आप खुद समझ सकते हो बट बाकी को समझने में उतना ही टाइम लग जाए कि वो वापस कोड अपना लिख दें खुद का ही। वी डोंट वांट दैट। तो हम लोग क्या करते हैं, नाम जो है इसका थोड़ा अच्छा रखते हैं, जैसे कि index.html। एंड देयर आर फ्यू मोर डेविड प्रैक्टिसेस जो कि आई विल बी टेलिंग यू कैसे रखना है, सो दैट इफ यू आर वर्किंग विद एनीबडी एल्स you guys will be able to collaborate with them much easier and they'll be able to understand your code much easier। सिर्फ 3 लोगों का डाउनलोड हुआ है अभी तक। आई मीन इतनी बड़ी फाइल भी नहीं है, इट्स जस्ट लाइक 200 MB और समथिंग। भैया मेरे लिए तो ये 1 आवर दिखा रहा है डाउनलोड का। 1 आवर दिखा रहा है इतना? आपका इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम होगा, एक बार देख के आओ। ओके चेकिंग। ओके, तो अगर आपका 1 आवर दिखा रहा है ना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए करना, क्योंकि 1 आवर में तो हम लोग काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। सो आई से कि यू विल आई थिंक ऑनलाइन HTML एडिटर्स भी आते हैं, हम लोग उसमें भी काम कर सकते हैं आज। तो या आप सीधा इस पे जाओ, यहाँ पे नहीं प्रोग्रामिस पे जाओ, प्रोग्रामिस पे या क्रेजी। ठीक है, आज की क्लास के लिए वैसे आई वुड सजेस्ट कि VS को डाउनलोड कर लो, बट अगर फिर भी आप नहीं कर पा रहे गो ऑन टू programmis.com। यहाँ पे बेसिकली सर्च कर लो प्रोग्रामिस HTML ऑनलाइन कंपाइलर, सर्च दिस। आई विल बी शेयरिंग दिस लिंक इन द क्या बोलते हैं वेबसाइट, यहाँ पे ग्रुप में शेयर करो लिंक फॉर प्रोग्रामिस ऑनलाइन एडिटर।
यहाँ पे आई हैव शेयर दिस लिंक एंड यू गाइस कैन जस्ट ओपन इट। अगर आपका जैसे नेट अगर काफी धीरे आ रहा है, बट आई से डू इट ऑन VS कोड, इट विल मेक योर लाइफ मच इजियर। ठीक है, एंड ठीक चलो, तो फिर अब यहाँ पे मैं जितने लोगों का हो गया, आई थिंक अब मेरे को कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि वी डोंट हैव अनलिमिटेड टाइम या। तो हो गया ना सबका? सबका नहीं हुआ, 8 लोगों का तो हो गया। चलो, फिर जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, ओपन योर फाइल, exe फाइल डाउनलोड होगी, इसको ओपन कर लो। या तो exe फाइल ओपन करते ही आपको कुछ ऐसा दिखेगा, एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करना एंड देन नेक्स्ट दबाना। ठीक है, आपने कर लिया ये? कर लो इसे एक बार अच्छे से। फिर उसके बाद चूज द पाथ जहाँ पे आपको डाउनलोड करना है। मैं अपना डिफॉल्ट पाथ में इंस्टॉल करूंगा, मेरे को कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। आई सजेस्ट कि आप भी डिफॉल्ट पाथ में इंस्टॉल करो, क्योंकि बाद में फिर पाथ में डिरेक्टिंग करना, थोड़ा उसको मैनुअली सेटअप करना पड़ता है। तो आई सजेस्ट कि जो यहाँ पे है बाय डिफॉल्ट वैसे ही रहने दो। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करो। एक सेकेंड में मेरा डिलीट नहीं हुआ था क्या? या था तो पता नहीं। चलो, एनीवेज आई बी जस्ट डाउनलोडिंग इन अनदर पाथ। आई बी डाउनलोडेड ओवर हियर। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, अब यहाँ पे जो है आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे। पहला तो है क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, डू इट। उसके बाद जो है ऐड ओपन विद कोड टू विंडोज एक्सप्लोरर फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, डू दिस, चेक दिस वन एंड ऑल्सो चेक दिस वन। सारे के सारे चेक कर देने हैं एंड मेक श्योर कि सारे चेक करो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ दिखाएगा रेडी टू इंस्टॉल, एंड बस इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है एंड ये आपका थोड़ा सा टाइम लेके इंस्टॉल हो जाएगा। भैया वॉक थ्रू में क्या करना है? वॉक थ्रू में बेसिकली आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट 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 पे क्लिक करना है। बस आपके पास एक बार ना एक ऐसी स्क्रीन आएगी जहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस होंगे। जैसे क्रिएट पाथ में कुछ होगा, वहां पे लिखा हुआ क्रिएट डेस्कटॉप आइकन एंड ओपन में VS कोड ऐड करना। ये सब 5 कुछ ऑप्शन होंगे, टेक ऑल ऑफ देम। ठीक है। नहीं, वो हम्म वॉक थ्रू सेटअप वर्सेस कोड, गेट स्टार्टेड विद VS कोड, वो वाला। अच्छा, यहाँ पे हो क्या आप? अगले इस पे पेज आप इधर हो क्या? यहाँ पे? हम्म ओके, यहाँ पे तो पर मेरा वो आ रहा है कि यूज अलग दिखाएगा AI आपको। फीचर्स। अच्छा, यहाँ पे आपको जो भी दिखा रहा है, यहाँ पे जो होगा ना वेलकम, यहाँ पे लिखा आएगा, इसको क्रॉस कर दो बस। ठीक है, यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा, इसको यहाँ पे क्रॉस कर दो। इसका हम लोगों को कुछ नहीं करना। ओके, नहीं, ये नहीं तो आ रहा नहीं आ आपको? रहा, ये एक तो बार वो आ रहा। ठीक है, एक सेकंड, मैं आपको प्रेजेंटर बना रहा हूँ। एक बार मेरे को प्रेजेंटर एक बार आप मेरे को स्क्रीन शेयर करके दिखा दो कि क्या हो रहा है। आई विल सॉल्व योर इशू। आई मेड योर प्रेजेंटर, प्लीज शेयर योर स्क्रीन। हम्म या ओके, यहाँ पे हाँ, इसको ऊपर आपको क्रॉस दिखा तो रहा है, क्रॉस कर दो उसे ऊपर। यहाँ पे इसे। यस, ये या एंड राइट में जो वो है ना डायलॉग खुला हुआ है, राइट में चार जहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पे इसको भी ऊपर क्रॉस दबा दो ये। हाँ नाइस। ठीक है, अब यहाँ पे लेफ्ट में आपको कुछ वो दिख रहे होंगे आइकन, सबसे लेफ्ट में, नहीं नहीं नहीं, नीचे इसके, हाँ यहाँ पे सबसे ऊपर वाला आइकन पे क्लिक करो। हाँ, यहाँ पे आपको ओपन फोल्डर पे क्लिक करो, जैसे यहाँ पे करो, बाकी सब लोग भी कर लो। एंड यहाँ पे फिर ओपन फोल्डर पे आप अपना डेस्कटॉप डाउनलोड्स जहाँ पे भी आपको फोल्डर सेव करना है, बेसिकली एक फोल्डर बनाओ, जैसे ट्रेनिंग ग्राउंड्स करके एक फोल्डर बना दो एंड फिर उसको ओपन कर लो यहाँ पे। न्यू फोल्डर, राइट राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बना के, या न्यू फोल्डर, वहाँ पे न्यू का ऑप्शन था। न्यू फोल्डर, रीनेम इट टू ट्रेनिंग ग्राउंड्स।
या ओके एंड सेलेक्ट दिस फोल्डर, बस डू दिस। एंड इसके बाद अपना यहाँ पे, हाँ अगर आपको कोई चैट का वहाँ पे दिखाएगा ना AI फीचर्स, हाँ इसको यहाँ पे ट्रस्ट कर लो यहाँ पे, यस। एंड यहाँ पे जितना भी आपको AI फीचर्स दिखाएगा ना, जस्ट क्लोज इट। ये थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट करता है प्रमोट, बट इसको क्लोज कर दो, हम लोगों को कुछ AI नहीं यूज करना है इसका नाम, ठीक है। तो अभी मैं आपको वेट करो, सब लोग जब स्टेज पे आ जाएंगे ना, एक बार मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्लीज अनशेयर स्क्रीन। या ओके, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ और, आपको एक्सटेंशंस डाउनलोड करने होंगे VS कोड में। या ओके, तो मेरे को VS कोड में ऑलरेडी डाउनलोड हो गया, मतलब मैंने पहले किए हुए थे, अभी भी है वो रिटेन कर गए, चलो बढ़िया ही है। तो इज एवरीवन ऑन द स्टेज, इज एवरीवन विद मी? Yes. ठीक है चलो, तो जिन्होंने नहीं किया ना है अच्छे से, आई थिंक आप, क्या हुआ, सॉरी कोई कुछ बोल रहा था? I don't think अच्छा, so. एंड इफ यू गाइस हैव एनी डाउट्स, शामक सेठ को व्हाट्सअप कर दो अपना स्क्रीनशॉट लेके या कुछ। शामक वेल, मैं कैसे, शामक सेठ का नंबर है ना सबके पास? एंड भेज देगा मेरे को। हाँ भेज दे, अच्छा नहीं, इस पे चैट तो है ही। कोई ना, ट्रेनिंग ग्राउंड्स के अनाउंसमेंट्स पे भेज दे, अच्छा इसको DM कर दो यहाँ पे व्हाट्सएप पे या फिर डिस्कॉर्ड पे, एंड आपके इश्यूज ये सॉल्व कर देगा। तब तक आई विल बी मूविंग ऑन, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम है नहीं अनफॉर्चुनेटली। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा ना यहाँ पे मैं आपको VS कोड के स्ट्रक्चर से फेमिलियर करा देता हूँ। ऑन द लेफ्ट, यहाँ पे आपके पास सबसे लेफ्ट में जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे आपके पास आइकन्स है। तो पहले यहाँ पे है आपके पास इन एक्सप्लोरर, यहाँ पे आपको अपनी फाइल्स दिखती है सारी ऐसे कुछ स्ट्रक्चर में। फिर उसके बाद यू हैव सर्च, सर्च में यू कैन सर्च एनीथिंग जो कि आपने डायरेक्टरी खोली हुई है। मतलब डायरेक्टरी क्या होती है, जैसे मेरे यहाँ पे डायरेक्टरी जो है ना, प्रेप है, यहाँ पे मेरी डायरेक्टरी जो है, सॉरी मेरी डायरेक्टरी ट्रेनिंग ग्राउंड्स है, बोल्ड में नाम लिखा होता है सबसे ऊपर कैप्स में, ट्रेनिंग ग्राउंड्स। उसके अंदर मेरे पास एक फोल्डर है प्रेप करके, उसके अंदर मेरे पास एक फोल्डर है सेशन 1 करके, एंड लास्टली मेरे पास सेशन 1 में एक index.html की फाइल है। तो डायरेक्टरी में और बेसिकली डायरेक्टरी यही होता है कि आपका जो मेन पेरेंट फोल्डर है वो क्या है, एंड सेशन 1 मेरा अभी पेरेंट फोल्डर है, बिकॉज इसके अंदर मेरी वो रखी है, फाइल रखी है, ठीक है। अब सर्च में क्या होता है, मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, जैसे सपोज करो मैंने अपने यहाँ पे कुछ कोड लिखा है एंड मेरे पास बहुत सारी फाइल्स है, मेरे को अब याद नहीं आ रहा मैंने कौन सी फाइल में वो कोड लिखा था, आई कैन जस्ट सर्च दैट एंड मेरे को यहाँ पे सारे के सारे अकरेंसेस मिल जाएंगे उस कोड के। एंड देन यहाँ पे हमारे पास सोर्स कंट्रोल है, ये हम लोग गिटहब के लिए यूज करते हैं, बट अभी हम लोग गिटहब यूज नहीं करेंगे, आई विल बी स्किपिंग दिस। रन एंड डीबग, इसको भी अभी हम यूज नहीं करेंगे। एक्सटेंशंस, अब मैं चाहूंगा कि सबके सब एक बार एक्सटेंशंस पे आए, यहाँ पे इस डायलॉग पे क्लिक करें, एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन एक्सटेंशंस मेरे पास बहुत सारे, बट यू गाइस डू नॉट नीड ऑल ऑफ देम डाउनलोड। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ एक एक्सटेंशन है कोड रनर करके, कोड रनर, जस्ट सर्च कोड रनर हियर, यहाँ पे इसको कोड रनर सर्च करो एंड इसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं उसे, एक्सटेंशन, इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। So, हमारे को पूछते ही ट्रस्ट करा तो we should just press trust and install. या यस, बहुत लोगों ने इंस्टॉल कर दिया इसलिए। जावा वाला या फिर पाइथन वाला? नहीं, इसे भी कोड रनर होगा, इससे यहाँ पे वैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस होगी, जैसे रन C++ एंड सो ऑन, ऐसा होगा इसका डॉट रन करके सबसे ऊपर आ जाएगा, कोड रनर सर्च करोगे तो, ठीक है। मिल गया सबको? एक बार सबके हैंड्स में लोअर कर देता हूँ, एंड जिन लोगों ने कर लिया इंस्टॉल वो लोग एक बार प्लीज वो कर लो, हैंड रेस कर दो। चलो मैं लोअर नहीं कर रहा, जो लोग ने नहीं कर लिया, अरे वेरी गुड, बहुत लोगों ने कर लिया, चलो नाइस, ठीक है। तो ये वाला जब हो गया, इसके बाद गो ऑन टू प्रेटियर, प्रेटियर एक एक्सटेंशन होगा प्रेटियर, ये वाला
प्रेटियर कोड फॉर्मेटर, ये वाला एक्सटेंशन होगा। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, प्रेटियर कोड फॉर्मेटर, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा एक लोगो का पी बना होगा। इंस्टॉल दिस एज वेल, इससे आपको कोड जो है दिखने में बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, ईजियर हो जाएगा। जैसे जैसे करते जाओगे, रेज योर हैंड्स, आई विल बी सेइंग कि कर रहे हो कि नहीं। हम कोड रनर की जगह लाइव सर्वर भी तो यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लाइव सर्वर एक्चुअली, रुक जा, मैं लाइव सर्वर भी डाउनलोड कराऊंगा। अच्छा ठीक है। हाँ मैं लाइव सर्वर भी डाउनलोड कराऊंगा अभी। ठीक है, तो जैसे ही लोगों का हो जाइए मेरे को रेज हैंड कर दो, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सटेंशन। 2-3 हमारे पास इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद हम लोग सीधा कोडिंग है ना शुरू करेंगे। हो गया आपका इंस्टॉल? चलो नाइस, अप्रोक्सीमेटली 7 लोगों का हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला एक्सटेंशन जो हमारे पास वो है लाइव सर्वर करके, यहाँ पे लाइव सर्वर लिखा हुआ आएगा। हाँ, इसको भी इंस्टॉल कर लो, ये भी बहुत अच्छा वो है, क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन है। इसको भी एक बार इंस्टॉल कर लो, एंड as soon as you install, just raise your hands. सर लाइव सर्वर है, लाइव सर्वर, फाइल सर्वर? लाइव सर्वर, बस लाइव सर्वर। Done. Done? Okay. And the next extension is हाँ चलो, और कोई एक्सटेंशन नहीं इंस्टॉल करना। नाइस, एंड अब वापस इस पे क्लिक करो एक्सप्लोरर पे, एंड इसे यहाँ पे, इस विंडो को जहाँ पे एक्सटेंशन लिखा है इसको क्लोज कर सकते हो, व्हेन इंस्टॉल हो जाएगा। एंड वहाँ पे आपको शायद एक ऑप्शन भी दिखाएगा रीस्टार्ट रिक्वायर्ड। आई एम नॉट श्योर कि अगर दिखाता है नहीं दिखाता, बट अगर दिखाता है जस्ट क्लिक ऑन रीस्टार्ट रिक्वायर्ड, एंड वो अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। नहीं दिखाता? ओके नाइस। तो जब सब लोग कर लोगे मेरे को एक बार बता देना, देन आई विल मूव ऑन टू टीच यू गाइस HTML। उसके बाद फिर हम लोग HTML के बाद, अच्छा यहाँ पे HTML लिखा ही हुआ है काफ़ी, तो इसी से सिखा देता हूँ, ये भी सही है। एग्जैक्ट चीज़ कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद फिर दिखा दूँ। ओके, सो हो गया आपका? जब हो जाए जस्ट रेज योर हैंड्स। शामक एक बार ये एक्सटेंशन जो है उसमें लिख दे, व्हाट्सएप पे लिख दे, लाइव सर्वर राइट। लाइव सर्वर कोड रनर एंड और क्या था, प्रेटियर। ओके ओके नाइस, 8 का हो गया। भैया, what was the name of the third one? थर्ड वन, चलो मैं बता दो, सारे बता रहा हूँ, लाइव सर्वर, कोड रनर एंड प्रेटियर। ओके, तो आई थिंक अब हम आगे बढ़ सकते हैं। जब तक इंस्टॉल हो रहा है एक बार जस्ट सी माई स्क्रीन। ठीक है, अभी के लिए मैं इसे बंद Excuse कर me, देता हूँ। भैया. हाँ Actually, my call got disconnected. Can you please repeat what you said? कहाँ से रिपीट करूँ? Like after downloading, and you just told us about the features after that. या ठीक है, तो गो ऑन टू एक्सटेंशंस एंड श्यामा वुड हैव सेंट अ मैसेज ओवर हियर। हाँ, यहाँ पे 3 एक्सटेंशंस है, सर्च फॉर दीज 3 एक्सटेंशंस। यहाँ पे पहला था हमारे पास लाइव सर्वर है, जैसे सर्च करोगे सबसे पहला ही आपके पास जो आएगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा 77 मिलियन इसके डाउनलोड्स है। इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है इंस्टॉल, एंड उसके बाद जो है बाकी तीनों भी कर देना। ठीक है, क्लियर विवान? Second और third कौन से extensions थे? एक लाइव सर्वर, कोड रनर
and prettier. Code runner prettier. Okay, thank you. ओके ओके, चलो फिर मैं अब थोड़ा HTML जो यहाँ पे कोड लिखा है इसने इसी से समझा लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास HTML फाइल जो भी हम बनाएंगे, सबसे पहली लाइन HTML फाइल की शुड बी डॉक टाइप HTML। अभी सुनो, अभी लिखो कुछ मत, मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, बाद में आई विल टीच यू गाइस हाउ टू राइट इट। ओके, तो सबसे पहला हमारे पास लिखा है डॉक टाइप HTML, और यहाँ पे एक वो है, क्या बोलते हैं ये, एक्सक्लेमेशन मार्क। एंड इसका क्या मतलब होता है, दिस मीन्स दैट वी आर यूजिंग HTML5, दैट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML। देन हमारे पास HTML टैग होता है, ये HTML टैग हमारे पास पेरेंट टैग होता है। इसके ये जो टैग है, इसको हम लोग स्टार्टिंग में लिखते हैं अपने HTML की किसी भी पेज के। नाउ कोई भी HTML का टैग, कोई भी, सबसे एक्सेप्ट द फर्स्ट टैग डॉक टाइप HTML के अलावा, देयर आर एक्चुअली टू टाइप्स। एक तो होता है क्लोजिंग टैग, एक होता है सेल्फ क्लोजिंग। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बोथ ऑफ देम। एंड अच्छा, व्हेन यू वांट टू राइट अ कमेंट इन HTML या फिर किसी भी लैंग्वेज में VS कोड में, जस्ट प्रेस कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश वो होता है जो कि राइट शिफ्ट के लेफ्ट में है, ठीक है, इससे आपका कमेंट आ रहा है। एंड फॉर दोज हु डोंट नो, कमेंट इज बेसिकली अ लाइन ऑफ कोड जो कि आपका जो जब आप कोड रन करोगे, जो कंपाइलर है वो इग्नोर कर देगा इस कोड को। वो बोलेगा ये मेरी मतलब की चीज नहीं है, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। एंड इसका कलर भी थोड़ा अलग सा होता है। देखो ये मेरी स्क्रीन पे देखो, लाइन 18, यहाँ पे लाइन है ना, इस पे दिख रहा होगा कि इसका कलर बड़ा ग्रेड आउट है। दैट मीन्स इट इज अ कमेंट, ठीक है। तो कमेंट में यू गाइस कैन राइट एनीथिंग यू वांट, बट जनरली अगर हम लोग को कुछ एक्सप्लेन करना होता है कुछ कोड में कैसे चल रहा है, वी जस्ट राइट इट इन यहाँ पे कमेंट्स में। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ होते हैं, टू टाइप्स ऑफ टैग्स। तो पहला हमारे पास है क्लोजिंग, सेकंड होता है हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग। तो पहले हम क्लोजिंग का ही देखते हैं एग्जांपल। तो क्लोजिंग में हमारे पास दो टैग है, जैसे एक होता है पी टैग। अच्छा, VS कोड में आपके पास एक बहुत अच्छा फीचर ये है कि अगर मेरे को सपोज करो कोई भी टैग टाइप आउट करना है, आई विल जस्ट टाइप आउट द टैग का नाम। जैसे अगर मेरे को पी टैग होता है, उसको हम पैराग्राफ टैग बोलते हैं, आई विल जस्ट टाइप आउट द पी and I'll be presented with a whole lot of options in front of me, and इनमें से कोई भी मैं चूज कर सकता हूँ। यूजिंग एरो कीज आई कैन नेविगेट, जैसे एरो अप एरो डाउन से नेविगेट कर सकता हूँ, एंड आई कैन जस्ट प्रेस एंटर। एंड मेरे को इतना सारा कोड लिखने की जगह सिर्फ एक पी लिखा मैं, उससे मेरे को इतना सारा कोड मिल गया। दैट्स वाई वी यूज अ कोड एडिटर, दैट्स वाई वी यूज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एडिटर, सॉरी एनवायरमेंट, बिकॉज इससे फिर हमारे लिए कोड करना ईजियर हो जाता है, ठीक है। तो पी टैग का स्ट्रक्चर अब हमारे पास ऐसा होता है HTML में। पहले तो हमारे पास एक वो होता है, यहाँ पे वो होता है, क्या बोलते हैं, एंगल ब्रेस बोलते हैं इसे, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन भी बोल सकते हो। एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं कोडिंग के लैंग्वेज में। तो एंगुलर ब्रैकेट ओपन, दैट इज हमारे पास लेस देन का सिंबल है, फिर हमारे पास पी टैग। अब यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है हर एक टैग के लिए फॉलो होता है, जो कि क्लोजिंग टैग, नॉट जस्ट फॉर पी टैग। जैसे हमारे पास बॉडी टैग जो है वो एक क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पी लिखते हैं, उसके बाद फिर वी हैव द ग्रेटर देन सिंबल, दैट इज द एंगुलर क्लोजिंग टैग। देन वी कैन राइट एनीथिंग इसके बीच में। सो फॉर एग्जाम्पल, this is my first line of HTML, first code of HTML, ठीक है। एंड देन यहाँ पे कुछ भी लिखने के बाद यू नीड टू एंड या फिर क्लोज द टैग। अब वो कैसे करना है, एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पे वही वाला डाल देना है, सेम लिखना है, इसकी तरह बिल्कुल सेम लिखना है, बस पी से पहले या फिर कोई भी टैग से पहले, जैसे यहाँ पे बॉडी है, HTML है, हमारे यहाँ पे H1 है, एक स्लैश डाल देना है। ये VS कोड हमारे लिए कर देता है ऑटोमेटिकली, बट कुछ एडिटर्स नहीं करते, उनके अंदर स्लैश इज रियली नेसेसरी, ठीक है। स्लैश डालने पे हमारे पास जो है ये टैग एंड हो जाएगा। इसका मतलब HTML को लगेगा कि चलो इसका काम खत्म हो गया, अब मेरे को इसको आगे नहीं रेंडर करना वेब पेज पे। ओके, सेम थिंग हमारे पास एक और होता है, जैसे H1। मैंने भी इसमें वापस क्या किया, मैंने लिखा H1
एंड यहाँ पे मेरे पास एग्जैक्टली यही चीज आ गई, आई प्रेस्ड एंटर एंड उसने मेरे लिए बना दिया। ये अगर हम लोग जब ये यूज करते हैं, जब हम लोग को बहुत ज्यादा कोड लिखना होता है, दिस हेल्प्स अस अ लॉट, क्योंकि हमारे को फिर बहुत ज्यादा काम कम करना पड़ता है। मैं इसको ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा H1, फिर उसके बाद यहाँ पे वापस एक एंगुलर ब्रैकेट लगा के /H1, ये मेरे लिए इतना काम खुद ही कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे H1 के अंदर हम लिख सकते हैं, जैसे सपोज करो दिस इज अ हेडिंग। बाय द वे HTML में हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग होती है, H1 से लेकर H6 तक। H6 इज द स्मॉलेस्ट हेडिंग, H1 इज द बिगेस्ट हेडिंग। ठीक है, एंड उनके बीच में फिर एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, H2 थोड़ा उससे कम होता है, H3 उससे कम होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास 2 टाइप ऑफ क्लोजिंग होती है, हमारे पास ये क्लोजिंग टैग्स होते हैं। मेनली जो टैग्स हम यूज करेंगे HTML में वो क्लोजिंग ही होंगे। कुछ होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, जैसे कि BR टैग, इसके अंदर हम लोग को क्लोजिंग डालना ही नहीं पड़ता, ये अपने आप ही HTML समझ जाता है कि ये अपने आप क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे BR। BR क्या होता है? अच्छा, मैंने आपको बताया थोड़ा, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, सॉरी सॉरी मैं किसी ने कुछ बोला। ओके, एनीवेज, तो कैन एनीवन टेल मी, कि मैंने बता भी दिया शायद अभी तो, पी टैग का यूज क्या होता है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पैराग्राफ। नाइस, पैराग्राफ। पैराग्राफ हम इससे बना सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिखा है ना, our HTML editor updates the web view automatically in real time as you write the code. This is written in a paragraph tag. And this write, edit, and run HTML, CSS, and JavaScript code online. This is a heading. It is written in an H1 tag. अगर सपोज करो मैं इसे H2 कर दूं, देखो छोटा हो गया ये, H3 पे और छोटा हो जाएगा, सी। एंड यहाँ पे हम लोग बेसिकली अपलोडिंग इसी से ही करते हैं। मेनली तो हम टेक्स्ट इसी से ही लिखते हैं, P से। उसके बाद हम फॉन्ट साइज बाकी CSS में इन सब में चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेल्फ क्लोजिंग में क्या होता है हमारे पास एक BR टैग है। तो BR टैग का कोई यूज बता सकता है मेरे को? ब्रेक रूल। ब्रेक रूल, एग्जैक्टली, ब्रेक रूल टैग। इसके अंदर क्या होता है? इट इज बेसिकली लाइक स्पेस। अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पे इसने एक H1 लिखा है, उसके बाद एक P टैग डाला है, आई विल जस्ट ऐड अ BR टैग। अच्छा, इसके अंदर जैसे देखो यहाँ पे ऐसे मैनुअल डालना पड़ेगा, सी यहाँ पे एक लाइन का गैप आ चुका है, और जितनी बार मैं डालूंगा ये अच्छा, इसके अंदर नहीं होता ऐसे कोई, जितनी बार भी मैं डालूंगा BR टैग, उतनी बार मेरे को ब्रेक रूल मिल जाए, एक लाइन ब्रेक मिल जाए। और हमारे पास एक और टैग होता है ऐसा, दैट इज HR। ये बता सकता है कोई? जस्ट से इट आउट लाउड। HR नहीं पता, चलो कुछ HR इज हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल स्पेलिंग हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल इज बेसिकली हम लोग एक लाइन बना देते हैं पूरी पेज में, ये भी सेल्फ क्लोज है। इसके अंदर हम लोगों को ऐसे यहाँ पे ये लिखने चाहिए। अच्छा, एंड बाय द वे HTML में यू वोंट रिसीव एरर्स, तो फिर द थिंग इज HTML बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। मैंने यहाँ पे इसको HTML टैग के नीचे लिखा है, मतलब कि कोड में आना भी नहीं चाहिए, बट ये फिर भी आ जाएगा। HTML बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, वो आपकी कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। एंड यही उसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, बिकॉज देन आप जो हो, जब आपका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यू माइट मिस समथिंग। जैसे कि मैं इसका अगर क्लोजिंग टैग मिस कर दूं, मेरे को कोई एरर नहीं मिलेगा, तो और ना ही मेरे को वेब पेज पे दिखेगा। एंड उसके बाद मैं कुछ भी कोड लिख रहा हूँ, आई सी की ये कोड थोड़ा खराब हो रहा है, क्यों हो रहा है, यू वोंट इवन अंडरस्टैंड। इसलिए आप एक डेडिकेटेड IDE लाइक विजुअल स्टूडियो कोड, या फिर कोई लोग वेबस्टॉर्म यूज करते हैं उसका, जेट ब्रेन्स का, वो यूज कर लो, बिकॉज इट मेक्स योर लाइफ मच ईजियर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा या फिर इसके ऊपर जाऊंगा, मेरे को दिख जाएगा कि इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग कहाँ पे है। एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगर फ्यूचर में आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो। Okay, so BR and HR are self-closing tags, and
P and H1 आर क्या बोलते हैं उसे, नॉर्मल टैग्स, जिनको हम लोग को अपने आप क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, आई जस्ट क्या बोलते हैं इसे, कमेंट दीज लाइंस। मुझे एक डाउट था, या ये जो मेटा टैग यूज किया हुआ है प्रोग्राम में, इसमें ये सेल्फ क्लोजिंग है यस, दिस या इज सेल्फ क्लोजिंग, क्लोज करने वाला टैग है? ये सेल्फ क्लोजिंग है। ओके ये एक्चुअली ना, मैं इसको हम लोग, ये एक रिएक्ट का स्ट्रक्चर है। अब मैं रिएक्ट आपको समझाऊंगा नहीं, बट यहाँ पे इसको हम लोग सेल्फ क्लोजिंग ही क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके अंदर हम कभी भी ऐसे स्लैश मेटा नहीं लिखते, ये गलत होता है। ठीक है, इसको हम हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। ओके ओके नाइस। तो अब हमारे पास ये डॉक टाइप HTML हमने लिख दिया। इसके बाद हम लोगों ने लिखा HTML lang इज इक्वल्स टू en। अब देखो ये जो है ना lang इक्वल्स टू en, इसका हम लोग डिफाइन करें कि जो हम ये कोड लिखेंगे नीचे, ये इंग्लिश में लिख रहे हैं, नॉट की वेबसाइट की लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी। ओके, तो यहाँ पे लैंग्वेज जो है चेंज नहीं करूंगा मैं, अभी इंग्लिश ही रखे रहूंगा। बट इससे हम लोग एक ये देख सकते हैं कि एक HTML में हम लोग इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। जो भी यहाँ पे VS कोड ब्लू करेगा, ये प्रिटियर से हमको दिखेगा, ये ब्लू हो जाएगा। लैंग इज बेसिकली एन एट्रीब्यूट हियर। हम लोग जैसे सपोज करो यहाँ पे अगर H1 में जाओ, यहाँ पे मैं ना इसका एक और भी एट्रीब्यूट दे सकता है, जैसे स्टाइल दे सकता हूँ। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली CSS डाल सकते हैं एलिमेंट में विदाउट एक्सटर्नली डिफाइनिंग अ CSS फाइल। एंड P टैग में भी हमारे पास ऐसी चीज होती है। एंड कुछ टैग्स में, अलग अलग टैग्स में अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। HTML टैग में हमारे पास एक लैंग का एट्रीब्यूट है, जिससे भी डिफाइन कि हम लोग कौन सी लैंग्वेज में अपना कोड लिख रहे हैं। ओके, तो लैंग हम लोगों ने बोल दिया en के बराबर। तो ये स्ट्रक्चर याद कर लो, lang इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इक्वल टू में स्पेस नहीं आएगा, रिमेंबर करना है। एंड यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, कैपिटलाइजेशन मैटर्स, कैपिटलाइजेशन मैटर्स। इसमें नीचे अगर मैं हेड में इसको ऐसे लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर मैं ऐसे भी लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर एट्रीब्यूट्स में कैपिटलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, प्लीज नोट दिस। एंड यहाँ पे फिर मेरे को, अगर मैंने इसको खोला है तो मेरे को इसको अपने कर्ली क्या बोलते हैं कोड्स को बंद भी करना पड़ेगा। फिर हमारे पास एक मेटा टैग है। अब देखो ये जो दोनों है, लीव दिस, इसको आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है। मेटा चार्ट सेट UTF-8 एक्सप्लेन करता है कि बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो भी सिंबल्स यूज करेंगे अपनी वेबसाइट में, भी जो भी सिंबल्स होंगे, दैट इज बेसिकली UTF-8 के अंदर जितने भी सिंबल्स है वही सब है, उसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। UTF-8 इज बेसिकली ASCII जैसा कुछ होता है, एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर वी हैव अ लॉट ऑफ कंप्यूटर सिंबल्स। जैसे कि अलग अलग लैंग्वेजेस में होता है ना, जैसे सिंबल, जैसे कि ये कि जर्मन में लेटर होता है यहाँ पे ये, तो ऐसे लेटर्स बाकी लैंग्वेजेस में थोड़े और भी होते हैं, तो वो हम लोग यूज करने के लिए काम आते हैं। इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं UTF-8, ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है। मेटा नेम इक्वल्स टू व्यू पोर्ट, कंटेंट इज इक्वल्स टू विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ। ये रट लो भाई, इसको एक्चुअली रटने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ कि हाउ यू कैन जस्ट राइट दिस बॉयलर प्लेट कोड। इसे हम बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड, जो भी है हम लोग उसको कैसे लाते हैं। मैं बनाऊंगा न्यू फाइल index.html, नेवर इंडेक्स हमने बना दिया, तो index2.html। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा VS कोड का फीचर है ये, रिमेंबर दिस, बहुत कम आता है। एक मैं लिख दूंगा एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पे दिख भी रहा है कि क्या क्या कोड आ रहा है मेरे पास। एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा, एंटर दबाया, इतना सारा कोड आ गया हमारे पास। और ये सारा कोड हमें फिर रटने की जरूरत नहीं है, वही कहना है बस। ठीक है, ये रटने की जरूरत नहीं है, बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं इसे एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब हमारे पास टाइटल। अब टाइटल क्या होता है, ये सारे हेड टैग में आते हैं, जितना भी ये सब कुछ है ना। हेड टैग बेसिकली हमारा मेटा डेटा डिफाइन करता है वेबसाइट का। मेटा डेटा जैसे कि आपके अंदर जो मेरा मेरा मेटा डेटा क्या है, मेरा नाम भवित है, मेरी एज 17 है, मेरे पास सपोज करो, मतलब मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ, ये मेरा मेटा डेटा है। बट उसके बाद मेरे पास क्या क्या फीचर्स है, जैसे मेरे पास चश्मा है, मैंने हेडफोन्स लगा रखे, दीज आर माई HTML में बॉडी का टैग होता है, उसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो टाइटल टैग क्या बताते हैं हमें। टाइटल टैग इज बेसिकली यहाँ पे जो हम लोगों ने टाइटल लिखा, जैसे मेरी साइट का नाम माई पेज है, तो माई पेज इज द टाइटल ऑफ माई पेज।
अगर यहाँ पे देखिए टेक्स्ट इंडिकेट की साइट का नाम जो है वो टेक्स्ट इंडिकेट है, एंड यहाँ पे हम लोगों ने इसके अंदर इस लर्न पेज के लिए ये भी डाल दिया, ठीक है। तो ये टाइटल होता है हमारे पास, टाइटल हमारे पास बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट रहता है, बट यू कैन चेंज दिस टू एनीथिंग, जैसे माय फर्स्ट वेबसाइट। ओके, तो अब हम लोग बॉडी टैग में आते हैं। बॉडी टैग इज वेयर द एक्चुअल कोड गोज। यहाँ पे जितना भी दिख रहा है पहले तो HTML है, उसके बाद हमारे पास जो है बाकी हम CSS डालते हैं, तो ये सारा का सारा बॉडी में आता है। हेड में हम नहीं डालते, ये रिमेंबर बॉडी में आता है, एंड हेड और बॉडी दोनों के दोनों जो है एक HTML टैग में आते हैं। रिमेंबर दिस, VS कोड आपको बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर दे देगा, एंड आपको इसके अंदर ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कर्सर इधर रख देना है और कोड करना शुरू कर देना। तो अब आई वांट कि सब के सब एक यहाँ पे पैराग्राफ बनाए, एंड पैराग्राफ में जो लिखा है ना क्लिक हियर टू लर्न मोर, ये डाल दे। हमें कोई फोल्डर या कुछ बनाना है या सीधा शुरू कर देना है? नहीं नहीं नहीं, फोल्डर बनाओ, फोल्डर बनाने के बाद उसके अंदर फोल्डर में ही ये फाइल डालो, ठीक है। फोल्डर में फाइल डालना पड़ेगा। यस, We have also got classes from 6:30, so how much time will this take? दिस विल टेक टाइम तो देख लगेगा, मैं आई विल ट्राई टू रैप द Sir? सेशन इन सम टाइम, बट How do we, या so how do we get the content in index 2? सॉरी आवाज क्लियर नहीं थी मेरे को। How do we get the content in index 2? कंटेंट एंड एंडिंग्स टू, हाँ Index 2. अच्छा इंडेक्स टू, यहाँ पे मतलब ये फाइल कैसे बनाए? No, how do we get the content? कंटेंट, कंटेंट से आपको क्या मतलब है? ये सारा इधर किया। अच्छा I अच्छा, think he means Yes. या यहाँ पे बस ये है कि एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दो एंड एंटर दबाओ, ऐसे Sir, it's not एक्सक्लेमेशन coming. नहीं आ रहा ये, आई गेस आपको वेट करना पड़ेगा। आपने पक्का ये नाम सही लिखा है यहाँ पे .index.html? Oh no. हाँ वही, इसको चेंज कर दो index.html, या फिर अगर आपने index.html यूज कर रखा है index2.html, ओके। एंड उसके बाद फिर एक्सक्लेमेशन दबा, बाय डिफॉल्ट ये आपको VS कोड दे देगा, एंटर दबा दो एंड आपके पास ये बन जाएगा। मैंने क्या कर दिया, हाँ ठीक है। फिर यू कैन चेंज द टाइटल टू वट एवर यू लाइक, जैसे यहाँ पे मैंने टाइटल चेंज कर दिया इसका माय फर्स्ट पेज। उसके बाद देन जब आप ये कर दोगे आपके पास ये टास्क है, यू गाइस नीड टू क्रिएट अ पैराग्राफ, ओके। क्रिएट कर दिया आपने पैराग्राफ? बॉडी में क्या ऐड करना है? बॉडी में ही आपको पैराग्राफ ऐड करना है। या मैंने आपको दिखाया था ना एक पैराग्राफ टैग था, उस पैराग्राफ टैग को एक बार सोचो, रिमेंबर करो एंड जस्ट राइट इट डाउन। आपको पैराग्राफ टैग में क्या लिखना है? क्लिक हियर टू लर्न, बस, नथिंग एल्स। I've done that. हो गया। ओके नाइस नाइस। अभिज्ञान, यू हैव आल्सो डन दैट, नाइस। जिन्होंने कर लिया प्लीज रेज योर हैंड्स। तो इसे Good. व्यू किधर करेंगे? इसे व्यू करने के लिए आप क्या करो ना, यहाँ पे मैंने आपको एक लाइव सर्वर का एक्सटेंशन डाउनलोड कराया था ना, पहले तो यू नीड टू सेव दिस HTML फाइल, देन गो टू द HTML फाइल जिसको आपको व्यू करना है, एंड सेव कैसे करना है? Ctrl+S, ठीक है। उसके बाद देन यहाँ पे नीचे बॉटम राइट में बटन आएगा गो लाइव, क्लिक ऑन इट, एंड आपके ब्राउजर में ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक पेज खुल जाएगा। एक सेकेंड बस, यहाँ पे अलाउ कर देना इसे एक बार, जो आएगा अलाउ पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क, एंड ये अपने आप खुल जाएगा आपके ब्राउजर में। देखो यहाँ पे खुल गया ना, मैंने अभी कुछ नहीं लिखा, तो फिर देयर इज नथिंग इन दिस पेज। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे एक वो है, क्या बोलते हैं उसे, आपको यहाँ पे बॉडी टैग में एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ के बाद आपको पैराग्राफ में मैंने देखा है काफी लोगों ने लिख दिया, तो व्यू करने के लिए बस इधर दबा दो, डन, आ गया। नाइस, ठीक है। तो मैं भी पैराग्राफ लिखता हूँ, क्लिक हेयर टू लर्न मोर, नाइस। उसके बाद नाउ आई वांट टू गाइस टू क्रिएट अ बटन। अब बटन कैसे क्रिएट करते हैं?
सिमिलर मैनर में हम बस ये लिख देंगे बटन, और बटन में वी विल राइट लर्न मोर, और कुछ नहीं करना। सेव कर देंगे एंड यहाँ पे मेरे को विजिबल हो जाए, ठीक है। अब द थिंग इज कि मेरे को ना ये पेज जो है, एलिमेंट्स तो यहाँ और यहाँ पे सेम है, बट ये पेज ज्यादा ही अच्छा दिख रहा है, ये पेज इतना अच्छा नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? बिकॉज आई हैव यूज्ड CSS इन दिस पेज। ओके, तो कुछ CSS में आपको हमारे पास टाइम अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट पड़ रहा है, तो आई विल ट्राई टू रैप दिस अप बिकॉज अगली भी क्लास है। आई विल जस्ट राइट, अब मैं आपको ना काफी कोड इसका भेज दूंगा, सारा कोड भेज दूंगा इनफैक्ट। तो हेड ऑन टू दिस लिंक, मैं ये डाल रहा हूँ, कोड फॉर द फर्स्ट सेशन वेब डेवलपमेंट। ये हमारे पास एक TS की वो है, गिटहब रेपो है, रिपोजिटरी है। यहाँ पे आपके पास जैसे ही खोलोगे कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ओपन स्टाइल्स डॉट CSS, एंड यहाँ पे आपको जो भी दिखेगा, अभी मैं बताऊंगा क्या करना है इसका, बट टिल देन जस्ट फॉलो मी। एक बार देख लो, बाद में खुद एक बार कर देना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे index.html में, हाँ ठीक है, तो हम लोगों ने बटन बना दिया, सबने बटन बना दिया, यूज करना ना, बना दिया ना? Yeah. ओके नाइस। आई एम अज्यूमिंग कि बाकियों ने भी कर लिया, नहीं करा होगा तो प्लीज रिकॉर्डिंग से देख लेना। बटन बनाने के बाद अब जहां पे आपका index.html है, प्लीज इसको ढंग से सुनना, जहां पे आपका index.html है, अगर कोई फोल्डर दिख रहा है यहाँ पे, क्लिक ऑन द फोल्डर, राइट क्लिक ऑन द फोल्डर, क्लिक ऑन न्यू फाइल और डालो styles.css, ठीक है। और अगर यहाँ पे फोल्डर नहीं है कोई, तो सिंपली यहाँ पे एम्प्टी स्पेस पे क्लिक करो और यहाँ पे न्यू फाइल यहाँ पे कर दो styles.css। अब देखो दोनों फाइल का नाम सेम है, बट दोनों फाइल अलग अलग लोकेशंस में है। अगर हम लोग, ये बहुत ज्यादा एरर आता है इससे, सेशन 1 फोल्डर के अंदर styles.css है, बट यहाँ पे फिर जो ये स्टाइल वाली CSS है ना, ये वाली सेकेंड वाली जो भी हाईलाइटेड है, वो मेरे प्रेप वाले फोल्डर के अंदर है, एंड आई डोंट वांट दिस फाइल इन माय रूट, क्या बोलते हैं, प्रेप वाला डायरेक्टरी। आई वांट दिस इन माय सेशन वाला फोल्डर या फिर डायरेक्टरी। ओके, तो मेक श्योर कि आपने यहाँ पे बनाया है। अब नाउ बिफोर राइटिंग एनीथिंग इन द CSS फाइल, CSS क्या होता है मैंने आपको बताया था, इट इज यूज्ड फॉर स्टाइलिंग। जैसे घर में पेंट करते हैं, CSS इज यूज्ड फॉर स्टाइलिंग एंड डेकोरेटिंग द पेज, ठीक है। तो CSS में हमारे पास जो है, क्या बोलते हैं उसे, कुछ अलग सिंटैक्स होता है HTML का। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को अपने HTML फाइल को बताना पड़ेगा कि भाई हमने एक CSS की फाइल बनाई है, तेरे को वो CSS की फाइल यूज करनी है अपने ही फाइल, अपने कोड को चेंज करने के लिए। हाउ डू वी डू दैट? वी राइट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, उसे बोलते हैं हम लोग स्टाइल, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे स्टाइल नहीं लिखना, हम लिखेंगे लिंक। लिंक लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा, रेल इक्वल्स टू स्टाइल शीट एंड href इक्वल्स टू डैश डैश। यहाँ पे हम लोग को FRH में एडिट करना है एंड हम डालेंगे ./ और हम लोगों को यहाँ पे दिखा देगा styles.css। अगर आपको ये नहीं दिखा रहा, दैट मीन्स आपने अपने फोल्डर के अंदर नहीं बनाई है, बट अगर आपको दिखा रहा है तो यू हैव डन करेक्ट, अगर नहीं दिखा रहा तो मेरे को बताओ। हम HTML के अंदर भी तो स्टाइल का लिख सकते थे, स्टाइल डेफिनेटली टैग लिख के सकते अंदर। हैं, हाँ हम लोग HTML के अंदर भी स्टाइल टैग लिख सकते हैं। बट द थिंग इज, देखो हमारे स्टाइल जो है ना, मैं अगर आपको गिटहब पे दिखाऊं, styles.css बहुत बड़ा है ना। तो इतना बड़ा मैं अगर HTML में लिखूंगा तो एक फाइल विल बिकम बहुत cluttered, and this is what we exactly do not want to do while we are developing a website. We want कि each फाइल का जो कोड है छोटे से छोटा हो, एंड जितनी भी फाइल्स बनानी है हम बना लें, because that way it remains organized and it remains easy to understand. Okay, this is a development practice। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, मैं अपने वेबसाइट टेक्स्ट इंडिकेट की वेबसाइट का ही एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि टेक्स्ट इंडिकेट की वेबसाइट है, यहाँ पे इतनी सारी फोल्डर्स है, फोल्डर्स के अंदर और फाइल्स है, और इतनी सारी फाइल्स हैं। तो जैसे मैं अगर आपको पब्लिक में जाकर दिखाऊँ, हमारे पास और ज़्यादा फोल्डर्स हैं, उसके अंदर फाइल्स है, और ज़्यादा फोल्डर्स है, उसके अंदर फाइल्स है, फिर हमारे पास ऐप के अंदर फोल्डर है,
उसके अंदर फाइल्स हैं, जैसे page.tsx हमारे पास एक ये बहुत ज़्यादा बड़ा कोड है। तो वही है, as soon as your project becomes complicated, it is really hard to comprehend code अगर आपने सारा का सारा एक ही फाइल में थोप दिया। ठीक है, भगत स्टाइल्स को हमें उसका कोड कहाँ से कॉपी करना है? मैं आपको भी बता रहा हूँ। आई नो कि सेशन ओवर हो रहा वाला है, बट आई विल जस्ट टेक 15 मिनट्स ऑफ योर्स। ओके, थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो बस यहाँ पे आपने ये कर दिया, सेव योर कोड। वैसे बाय द वे ये आपने लिख दिया? नहीं, ये नहीं लिखा। एक बार ये लिख दो, ये लाइन लिख दो यहाँ पे। आपके पास चैट नहीं है ना, मैं चैट में पोस्ट भी तो नहीं कर सकता। बस सिंपली आपको क्या करना है, लिंक लिखना है, LINK, एंटर दबा दो, रेस्ट स्टाइल शीट अपने आप आ जाए, एंड देन // लिखते आपको यहाँ पे ही अपने फोल्डर के अंदर अगर आपने styles.css डाला है तो आपको VS कोड अपने आप दिखा देगा। प्रेस एंटर एंड बूम, यू आर डन। भगत हाँ, I'm sorry, but we are going to have to continue this in the next session because 2 more sessions have already started. So if you can wrap it up in like 2 or 3 minutes, the rest can be continued in the next session, okay? Next week. ओके श्योर, ओके। तो अभी के लिए मैं आपको बनवा देता हूँ कुछ ना कुछ। तो आपने लिख दिया जल्दी नहीं, से? styles.css में डालना क्या है, वो जो उधर साइड हाँ, पे है? उधर साइट में मैं आपको बताता हूँ। गिटहब आपने खोल लिया? यहाँ पे गिटहब नाम का एक मैंने आपको वेबसाइट भेजी थी, उसको मैंने उस पर भेजा हुआ है व्हाट्सएप पे। उसको एक बार ओपन कर लो, एंड यहाँ पे इसको पूरा का पूरा कॉपी करके जितना भी कोड है सारा कॉपी कर लो, styles.css में CSS में पेस्ट कर दो। ठीक है, कर दिया? एक मिनट। या ओके, जस्ट पेस्ट दैट कोड, एंड बाद में मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा कि यहाँ पे इस कोड को हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली, की स्टाइलिंग करनी कैसे होती है हम लोग को CSS से। As soon GitHub as में how do I get the text indicate वाला जो आपने जो कोड लिखा है, how do I get that through GitHub? बस लिंक पे चल जाओ, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। बस ऐसे लिंक मैं आपको भेज रखा है व्हाट्सएप पे, यहाँ पे ऊपर चला गया थोड़ा, बट यहाँ पे Oh, okay. लिखा हो। ओके, Okay, thank you. इस पे चले जाओ बस, और फिर आपके पास ये सामने सामने आ जाएगा। क्लिक ऑन styles.css, यहाँ पे कॉपी, एंड इधर जाके styles.css पे अपने पेस्ट, सिंपल एज दैट। सेव कर लेना। जैसे ही कर लोगे एक बार रेज चलाना बस, पूरी चीज? पूरी चीज। हो गया। हो गया, चलो। आई गेस कि कुछ लोगों का हो चुका है। आई विल नाउ बी कंटिन्यू फर्दर। बस अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे P पे जाना है अपने, जो P टैग है, एंड P पे जाके नेवर माइंड, P पे आपको कुछ नहीं करना। एंड हाँ ठीक है, P पे कुछ नहीं करना, बटन पे जाना। बटन पे एक स्पेस दबाना, यहाँ पे जाके बिल्कुल इधर स्पेस दबाना, लिखना क्लास इज इक्वल्स टू learn-more-btm। learn Please dash wrap up the session. The next या workshop has to ओके start. ओके ओके, या जस्ट बस होने वाला है। बस यहाँ पे क्लास लिख दो, लर्न मोर बटन, एंड जैसे ही ये कर दोगे ना, आपकी सारी की सारी स्टाइलिंग्स आ जाएगी यहाँ पे। ये क्या होगा, स्टाइलिंग्स नहीं आई, एक सेकेंड। हाँ सॉरी, माय बैड। यहाँ पे ना एक काम करना फिर, अरे यार ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा। गिटहब आ गया मेरा। ओके चलो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। यहाँ पे आना, बस P टैग के ऊपर एक डेव लिख देना। डेव बेसिकली एक
एम्प्टी स्पेस होता है, इसके अंदर हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं अपने वेबसाइट में, लिटरली कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, डिव जैसे ही हमने लिखा यहाँ, हम क्या करेंगे, ये जो जितना भी कोड है इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड इधर पेस्ट कर देंगे इसके अंदर। जब भी कर दोगे, जस्ट राइट यहाँ पे अपनी क्लास लिख दो, कंटेनर, एंड देन आपका पेज एकदम सही दिखने लग जाएगा। हाँ ठीक है, एक बार बस ये कोड कॉपी कर लो, उसके बाद मैं आपको वो सारा का सारा जो है नेक्स्ट सेशन में आपको समझाऊंगा। अगर अगर आपका होमवर्क ये है कि इफ यू कैन learn about classes and IDs in HTML, I will share you a link जिसमें आप वो डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हो। ठीक है, तो have you guys done this? यस भैया। एंड आपका कोड अब आपका पेज अब ऐसा ही कुछ दिख रहा है? यस भैया। भैया एक बार Okay. फिर से कोड दिखाना। हाँ हाँ, भैया मेरे में थोड़ा सा लैग कर रहा है। आपके यहाँ पे थोड़ा सा लैग कर रहा है, कोई ना, वो कभी कभी लैग करता है। हम लोग इसके अंदर ये CSS की प्रॉब्लम है, कभी कभी हम लोग इसका फिक्स नहीं कर सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। इसे फिर वापस कैसे खोलना है? वापस कैसे खोलना मतलब? अच्छा, अगर आपने बंद मतलब कर दिया मैंने है, बंद कर दिया क्योंकि वो अपडेट नहीं हुआ, जब मैंने बटन डाला था अपडेट नहीं हुआ था वो। वो आपने सेव नहीं किया होगा, कंट्रोल एस दबा के एक बार सेव कर दो। जब आप सेव नहीं करते ना, यहाँ पे एक वाइट डॉट आ जाता होगा। ठीक है, तो जस्ट सेव इट। उसके बाद फिर अगर आपने यहाँ पे बंद कर दिया तो वापस इसको यहाँ पे दिखाएगा ऐसे, क्लिक टू क्लोज सर्वर, उसको क्लोज करके वापस उस पर दबा देना। ठीक है, तो फिर अभी के लिए, अच्छा अगर आपको आपने नहीं लिखा अभी तक कोड, तो फिर यहाँ पे ना ये सेम कोड एग्जैक्ट सेम इसमें है, index.html, वही सेम फाइल है इसके अंदर, उससे आप देख के लिख लेना। अब आपका होमवर्क ये है कि मैं आपको एक दो लिंक्स भेजूंगा एंड वहाँ पे आपके पास एक HTML का डॉक्स होगी, डॉक्यूमेंटेशन होगी कि आप कैसे HTML में क्या क्या चीज़ होती है। बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले भी कहा था, आई कैन नॉट कवर एवरीथिंग इन वन सेशन ओनली। सो नेक्स्ट सेशन से वी विल बी ट्राइंग, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में, एंड लास्ट सेशन में वी विल बिल्ड एन ऐप टुगेदर। ओके, so that was all for this session. Thank you so much for attending the session. If you have any doubts, you can just text me or Shamak, and we will be helping you. हाँ, कोई बोल रहा था कुछ? हाँ, मैं ये कह रहा था, थैंक यू भवित। अभी बिकॉज नाउ दी AV एडिटिंग सेशन एंड CTF सेशंस आर स्टार्टिंग, जो भी पार्टिसिपेंट्स को वो सेशन ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर प्रोग्रामिंग अगर वेब डेवलपमेंट का कोई भी डाउट है आप भवित को मैसेज कर सकते हो, ही विल अटेंड टू ऑल योर क्वेरीज एंड ऑल। अभी के लिए वी हैव टू एंड द सेशन, सो या Okay, तो फिर thank you everyone. Thank you. Thank you so much. Bye. Thank you.